Good morning to you all. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. So is there any noise which you can hear? Is my voice clear? Yes, sir. Okay. Okay. So let your friends to join. After 2 minutes, I will start the lecture. So as all of you know that in the last class I have told you that from today onwards, we will see the questions which are coming in your competitive exams as well as in your university exams. So while going through the syllabus of JUT, I have also given some university exam questions to you, but I have not told you. So instead of the competitive exam questions, I will also go through the questions which are asked in university exam. Okay. So I would like to say that I think all of you should go through these classes because as the syllabus of JUT was important, more than that, this is also very important because um, at last, or the motto is for getting a good marks in get exams. Okay, and if you started preparing from this semester itself, then it will be very good for you so that you will get a very long time to prepare for that. क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में अगर आप प्लान करते हो कि मुझे गेट की तैयारी करनी है तो आपको वही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगेंगी क्योंकि जो आप जब करंट में रहते हो और उस वक्त अगर आप क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो ज़्यादा समय तक बने रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसे ज्वाइन करें क्योंकि आपको लास्ट में गेट एग्ज़ाम देना ही है। ओके, और आप लोगों को पता होगा गेट का इम्पोर्टेंस वो हर एक तरह से इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे PSUs में जाना चाहते हो तो यू हैव टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू गो टू हायर स्टडीज़ तो वहाँ पर भी आपको गेट की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट गेट यू कैन नॉट एंटर। Yes, obviously you can enter if you have a good background, means if you have a good research based approach, then without gate you will also get enter into the good institutions. Okay, but this is one of the way and one of the best way to get enter into one of the good institutions of national or international importance. Okay, so I think all of you should start preparing for these exams from this semester itself. और अगर कुछ लोगों ने पहले से भी start किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है। फाइनल ईयर में क्या होगा, आप वेरियस अलग अलग तरह की चीज़ें करेंगे। आपको कैंपसिंग में बैठना होगा, उसके लिए आपको एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा, इंग्लिश पर कमांड करना होगा, है ना। तो अभी आपके पास समय है, आपको उन सब चीज़ों पर भी अभी भी थोड़ा समय देना है, बट आई थिंक आप लोग समझ रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट।
So first of all, we will go through the syllabus of GATE and the percentage or the portion from the, as it belongs to electrical engineering, but I am sharing the GATE questions or the analysis of GATE questions for PCE. Okay, so approximately I think in electrical also the syllabus is same, more or less. So are you able to see the PDF? Are you able to see the PDF? Yes, sir. हाँ सर दिख रहा है. Okay. Should I enlarge it or the text is clear? टेक्स्ट क्लियर है या इसे और एनलार्ज करूं? क्लियर है सर. ओके, चलो तब भी आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, मैंने इसे थोड़ा एनलार्ज कर दिया सो दैट अच्छी तरह से दिख पाए. सो दिस इज द portion of digital electronics. Okay, just wait for a minute. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. No problem. I am switching the. Okay. I'm sharing the PDF again. Okay, so this is the portion. All of you can see this, the PDF. Okay, so in the syllabus you can see that here it is number system. All of you have gone through this, the combinational circuits, Boolean algebra, minimization of functions using Boolean identities, okay, Carnot map, logic gates, and their CMOS implements. I think आप लोगों ने ये portion नहीं किया है. So the portion, yes, this portion, इस portion को आपने नहीं किया है. CMOS implementation, arithmetic circuits, code converters, multiplexers, decoders, PLA, ये आप लोगों ने नहीं किया है. Sequential circuits में आप लोगों ने latches and flip flops देखा है, counter, shift registers, finite state machine, ये आप लोगों ने नहीं देखा है. Okay, we will discuss this thing. Finite state machine, we will discuss this. Data converters आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है. होल्ड सैंपल एंड होल्ड सर्किट नहीं पढ़ा है, एडीसी डीएसी नहीं पढ़ा है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज नहीं पढ़ा है, ठीक है. तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब number from the number system, the combinational parts and the sequential circuits. Okay, now you can see the paper or the questions, number of questions asked and the total marks
which are asked in through 1987 up to 2019. Okay, so you can see the portion of the from the total marks. There are approximately 10 to 11 marks or up to 10 marks. There are questions from the digital electronics. So this is about the ECE department, but more or less in electrical also maybe the same. So now let us go through the questions. Okay, so सर डबल ई में तो 4 या 5 मार्क्स का ही आता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन पोर्शन तो आई थिंक सेम होगा। सिलेबस का जो पार्ट है वो आप लोग देख रहे होंगे अगर इलेक्ट्रिकल रुकिए हम भेजते हैं ग्रुप में। का आप लोगों ने सिलेबस देखा है किसी ने? यस सर। तो क्या पोर्शन सेम है? सर बस 2-3 टॉपिक इधर उधर है सर। क्या 2-3 टॉपिक है पर जो चेंज है, तो लगभग सेम ही है। तो क्या इसके अलावा लास्ट तो का जो रोम, अच्छा, ये सेमी कंडक्टर रोम और मेमोरी एसआरएम ये सब नहीं है। सेमी कंडक्टर मेमोरीज नहीं है आप लोगों के सिलेबस में? यस सर नहीं है। इसके अलावा बाकी सारा कुछ है? डेटा कन्वर्टर्स, ये एडीसी डीएसी तो होगा ही। चलिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस लेकर आता। मुझे इलेक्ट्रिकल का ध्यान नहीं रहा। ओके, बस क्वेश्चंस देखा और बेस्ड ऑन दैट आई हैव टेक इट फ्रॉम द बुक। Okay, so don't bother about this. We will go through the portions, I think, which are in your syllabus also, like number systems, combination circuits, sequential circuits. I think all of these things are in electrical syllabus of electrical also. So should I show you the syllabus of electrical also? Okay, just give me a minute. Give me a minute. I'm showing you the syllabus of electrical also. Sorry. Just wait for a minute. Digital electronics. Digital electronics.
Okay, let me share this screen. Are you able to see this? Are you able to see the syllabus? Yes, sir. Okay, so here you can see that actually the syllabus is your syllabus is एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक साथ है इसी में, जबकि ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है. Okay, so digital electronics वाला part we can see here that okay from where it is operational amplifiers, VCOs, yes, here combinational and sequential logic circuits, multiplexer, demultiplexer. Okay, here you can see that sample and hold circuits, AD and DA converters, the 8085 microprocessor architecture, programming and interfacing. तो ये तो अलग पार्ट हो गया. ये माइक्रोप्रोसेसर का पार्ट आप लोग देखोगे 5th सेमेस्टर में, मे बी 5th और 6th सेमेस्टर में. तो ठीक है, तो हम जो कि हमारे लिए सही है, मतलब Boolean algebra, the number systems, combinational and sequential part. Okay, so we will firstly go through the number systems. So are you able to see the PDF? Are you able to see the PDF? Please reply. Am I audible? Yes, sir. Okay. काफी देर से रिप्लाई देते हो. आवाज देर से जा रही है क्या? आवाज क्या देर से जा रही है? सर चले गए. I came back. मैं कहीं नहीं जाऊंगा. इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है. अभी आवाज जा रही है मेरी? यस सर. ओके, सो मेरी आवाज कम जा रही है या ज्यादा जा रही है? क्योंकि मैंने यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम कम किया हुआ है. आवाज जा रही है क्लियरली ना? Clear है. Okay, so I think you can see the first question. Okay, so the very first question from the number system is oh my god. Okay, so the first question, subtraction of a binary number y from another binary number x done by adding the 2's complement of y to x results in a binary number without overflow. Okay, so this implies that the result is, so all of you know the 2's complement arithmetic. We have already discussed this in the classes. Okay, so what we have to get, so we have to do x minus y. Okay, it is given here, y from another number which is x, okay, done by adding the 2's complement of y to x. Okay, so हम लोग we already know that we will do this type of arithmetic operation using 2's complement by what?
what we do when we want to do this type of arithmetic operation, we do x minus plus of minus y. हम यही करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में, और यहाँ पर करते क्या है, x को लिखते हैं और y का क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y लेते हैं, है ना, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कुछ रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट से हम कंक्लूड करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में जो हमने एजम्पशन देखा था, वो एजम्पशन क्या थे कि जो भी कैरी आता है उस कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट में। इन केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैरी को डिस्कार्ड करते हैं। तो क्या आप लोगों को ये चीज दिमाग में है या मैं इसे रिमाइंड करूं पूरा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का अरिथमेटिक ऑपरेशन? प्लीज रिप्लाई दैट। टू कॉम्प्लीमेंट मेथड से। हाँ, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को क्या इसे पूरा बताऊं, अभी पूरा रिवाइज करवाऊं या आप लोग जान रहे हो? पता है आवाज कट रही है सर, बोल रहे सर कि तो पता है कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, पता है। तो एक लोग आप बता रहे हो पता है, इनके अलावा और कोई बताए? क्या सभी को पता है? एक बार तो सभी लोग पढ़ चुके हो, बट ये क्वेश्चन करने के लिए आपको वो मेथड पता होनी चाहिए पूरी तरीके से, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये 1987 का 1 मार्क क्वेश्चन है एंड इट इज क्वाइट इजी। और ये इजी तभी होगा जब वो मेथड आप पूरी तरह जानोगे। तो डू यू ऑल नो? कोई रिप्लाई नहीं करते हो? अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर कैसे पता चलेगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँ? मतलब ऐसे ही बताता जाऊँ, आपको पता हो या नहीं हो मैं बताता जाऊँ। सो एक स्टूडेंट ने कहा सिर्फ कि पता है। बाकी लोग नहीं कुछ बोलो, मैं खुद ही समझ लूँ। हाँ, मैं खुद ही समझ लूँ कि आप लोगों को पता है या नहीं। ओके, तो x और y दो नंबर्स हैं। तो अगर जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो क्लास छोड़ सकते हो, ये कोई बंदिश नहीं है कि आपको क्लास में रहना ही है। तो जिनको अगर ना पसंद हो तो वो क्लास छोड़ सकते हैं। आपको इस बंदिश के कारण यहाँ पर नहीं रहना है कि आपको आपका अटेंडेंस कम हो जाएगा। जितना अटेंडेंस होना था आपके रेगुलर क्लासेस में हो गया। एंड दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड टू डू द क्वेश्चंस which are of from the point of competition which are important. ओके, सो आप प्लीज रिप्लाई करो। आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो वी हैव नंबर x एंड वी हैव अ नंबर y, और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो नंबर्स x और y अगर हैं और x माइनस y हमें करना है, so for that case we require to do the addition after taking the complement of the negative number, two's complement of the negative number. So यहाँ पर ये जो नंबर है y, इसे हम नेगेटिव इंटरप्रेट कर रहे हैं, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y ले रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट आएगा इनका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, मान लें कोई एक रिजल्ट आया r, और यहाँ पर एक कोई कैरी आएगा, ठीक है, कैरी मतलब एक एक्स्ट्रा बिट आएगा, हम उसे कैरी मान रहे हैं। ठीक, अगर कैरी बिट आता है तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना, कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। और उसके बाद देखते हैं MSB क्या है। MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, इन दैट केस द रिजल्ट इज इन इट्स ट्रू फॉर्म। अगर MSB का वैल्यू 0 है, इन दिस केस when the value of MSB is equal to 0, इसका मतलब क्या है, it implies that the result
is in its true form, okay, and it is positive result, okay. But on the other hand, if MSB is 0, sorry, on the other hand, if MSB is 1, in that case the result is negative and it is in its 2's complement form. तो इस केस में जब MSB 1 आता है, इन दैट केस क्या होता है, रिजल्ट जो होता है वो 2's complement फॉर्म में होता है, और हम उस 2's complement फॉर्म का जब 2's complement फॉर्म का जब 2's complement लेंगे, देन वी विल गेट दी रिक्वायर्ड रिजल्ट, ओके. सो अभी यहाँ पर देखें ऑप्शंस को, तो दिस इंप्लाइज दैट द रिजल्ट इज, तो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव द ऑप्शंस लाइक नेगेटिव, सो दिस इंप्लाइज दैट द रिजल्ट इज, सो वी आर टेलिंग अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इज इन इट्स नॉर्मल फॉर्म. तो हमने अभी क्या कहा कि रिजल्ट अगर नेगेटिव होगा तो वो अपने किस फॉर्म में होगा, 2's complement फॉर्म में होगा. तो ये यानी कि बी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इज इन इट्स ट्रू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, एंड थर्ड ऑप्शन इज पॉजिटिव एंड इज इन द नॉर्मल फॉर्म, ओके, पॉजिटिव एंड इज इन 2's complement फॉर्म. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने क्या कहा कि अगर MSB 0 होता है तो रिजल्ट अपने ट्रू फॉर्म में होगा, ठीक है, या और पॉजिटिव होगा. 0 है मतलब पॉजिटिव होगा, और 1 है मतलब नेगेटिव होगा, और 2's complement फॉर्म में होगा. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बी ऑप्शन में नेगेटिव एंड इट इज इन इट्स ट्रू कॉम्प्लीमेंट इन इट्स 2's complement फॉर्म, एंड सी ऑप्शन इज पॉजिटिव एंड इज इन नॉर्मल फॉर्म. सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, okay. So if you know the total operation, then easily you can answer this question. Okay, let us go to the next question. So अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में क्वेश्चन को लिखकर उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हो तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये चीज कर लोगे. We are going to the next question now. Yes. So what is the question? What is the question here? 2's complement representation. 2's complement representation में दिया हुआ है of a 16-bit number. एक 16-bit number को 2's complement में दिया गया है 1 sign bit and 15 magnitude bits. ओके, तो टोटल 16 बिट्स है. इफ f तो 16 बिट नंबर है, उसमें फर्स्ट बिट जो है वो साइन बिट है और 15 बिट्स मैग्नीट्यूड बिट्स हैं, एंड इट इज f. इट्स मैग्नीट्यूड इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, तो मैग्नीट्यूड पूछा गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में. तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, इसका क्या मतलब है, f मतलब क्या है, ये f ये हेक्स में लिखा हुआ है, ओके. सो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी, ओके. सो लेट अस कन्वर्ट दिस f इन बाइनरी. f इट इज हेक्साडेसिमल. बाइनरी इज 1111 1111 1111 and 1111. Okay, so a total of 16 bits. And according to question, the first bit is the sign bit. Okay, this 1 bit is the sign bit. So what is written here, that 2's complement representation of a 16-bit number if this. तो ये जो नंबर है वो क्या है, this is the 2's complement. ठीक, 2's complement है. तो हमें पूछा क्या गया है, इट्स मैग्नीट्यूड इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो ये जो 2's complement में दिया गया है, इस 2's complement को हम पहले क्या करें, नॉर्मल फॉर्म में ले आए. तो 2's complement को नॉर्मल फॉर्म में कोई भी नंबर हो अगर x,
इस नंबर का अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है y मान लें, और इस नंबर का अगर फिर से हम 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे then we will get that number again. Okay, so already we have this y is given and we have to find this x. So let us take the 2's complement of this number. So can anybody tell me what is the 2's complement of this number? Can anybody tell me the 2's complement of this number? सारा 0 और लास्ट वाला 1. Last वाला मतलब LSB. Yes sir. Okay, so LSB is 1 and हम 2's complement में हमने 2's complement निकालने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड है. तो पहला एक तो हम 1's complement निकालें और उसके बाद उसमें +1 करें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम LSB से चलना शुरू करते हैं. तो LSB में जो भी फर्स्ट वन आएगा, LSB में जो भी फर्स्ट वन आएगा उस वन को एज इट इज छोड़ेंगे, और उसके बाद के जो वंस हैं उससे हायर लेवल के उनको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. तो बाकी के सारे डिजिट्स जो है, बिट्स जो है वो 1 है. सो ऑल दीज 1 विल चेंज टू, और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल 1 इज 0 0 0 0. ओके, so total of 16 bits. So now this is the true binary form of this number, and according to question you have to find out the decimal. Okay, you have to find out the decimal representation, magnitude in decimal representation. So if this is binary, ये अगर binary है तो इसका decimal कितना होगा? It is also 1, so the answer should be 1. Okay, 1. yes. Let us go to the next question. Okay. Yes. ये भी नंबर, ये भी क्वेश्चन 2's कॉम्प्लीमेंट का ही है. तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अभी तक जो हम देख रहे हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट से ही रिलेटेड है. सो नाउ साइंड इंटीजर हैज बीन स्टोर्ड इन अ बाइनरी इन अ बाइट यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट. एक साइंड इंटीजर है जिसको क्या किया गया है, स्टोर्ड इन अ बाइट. ओके, एक बाइट में स्टोर किया गया है यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट. We wish to store the same integer in a 16-bit word. We would. तो आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए that according to question एक नंबर है और वो नंबर का साइज क्या है, 1 बाइट. ओके, 1 बाइट means how many bits? 1 byte means how many bits? What is the relation between bit and byte? Yes. What is the relation between bit and byte? 8 bytes sir. 8 8 byte. bit. 8 bit. Okay. नहीं sir, 8 bit. 1 byte is equal to 8 bit. And half byte is equal to? Half byte is equal to? But 4. 4 bit. And this 4 bit is also known as? Nibble. Yes, nibble. N-I-B-B-L-E. Nibble. Okay. So we have a number which is of 1 byte, a byte using 2's complement. एक नंबर है जिसे 2's complement फॉर्म में
स्टोर किया गया है. नाउ वी विश टू स्टोर दिस सेम इंटीजर इन अ 16 बिट वर्ड. उसी इंटीजर को हम 16 बिट वर्ड में स्टोर करना चाहते हैं. तो किसी नंबर कोई एक नंबर है उसे हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में 2 बिट में अगर लिखते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, लाइक 7. ओके, so 7 is in decimal. Now please tell me the 2's complement of this 7. So in binary 7 is represented as 1 1 1. If we want to represent this number, in 8 bits, then what is that number? This is a plus 7. But 0 0 0. Yes, so we will include 5. Yes, we will include 5 zeros. We will include 5 zeros and it will become 8. Okay. So this is the binary of this number in 8 bit representation. Now take the 2's complement of this number. Now take the 2's complement of this number. What was the result? For 1 0 0 1 1. Is it correct? 1 1. ये 2's complement. Yes, 2 4 6 8. ठीक है ना? So ये टोटल 8 बिट्स हैं. तो ये 2 बिट रिप्रेजेंट, मतलब ये हमने क्या किया है 2's complement रिप्रेजेंटेशन में. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यही कहा गया है कि 1 बाइट को स्टोर किया गया है 2's complement फॉर्म में. तो मान लेते हैं इसी नंबर को 2's complement में स्टोर किया गया है. नाउ वी विश टू स्टोर दिस नंबर इन 16 बिट. इसी नंबर को 16 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हिच वन इज द आंसर? सो क्या करना होगा? वी शुड कॉपी द ओरिजिनल बाइट to the less significant byte of the word and fill the more significant byte with zeros. First option is that. Second option is copy the original byte to the more significant byte of the word and fill the less significant byte with zeros. Integer have been stored in a byte. Next